السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نماز کی سنتوں کا بیان کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہماری جماعت کی متعلمہ موجود ہیں اور انشاءاللہ العزیز یہ بہترین انداز سے محنت کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کئی ویڈیو سے دیکھ رہے ہیں، کئی دنوں سے کہ نماز کے شرائط کا بیان چلا، نماز کے فرائض کا بیان چلا، نماز کے واجبات کا بیان چلا، اب نماز کی سنتوں کا بیان آج ہے۔ تو یہ بتائیے کہ نماز کی کتنی سنتیں ہیں؟ 27۔ انشاءاللہ العزیز اب ہم بتائیں گے کہ کیا کیا سنتیں ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں سے امید ہے کہ پورا ویڈیو آخر تک دیکھیے اور نماز میں کتنی سنتیں ہیں تمام سنتوں کو اپنے ذہن نشی کریں اور ہر سنتوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے ہم بتاتے ہیں کہ پہلی سنت کیا ہے۔ سنت نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، یعنی اپنے ہاتھوں کو اللہ اکبر کہہ کے باندھتے ہیں تو اللہ اکبر کہنا یہ کیا تھا؟ واجبات نماز میں سے، مگر یہاں صرف ہاتھ اٹھانا تکبیر کے لیے کیا ہے؟ سنت، ٹھیک ہے۔ اور سنت نمبر 2، ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑنا، یعنی ہاتھوں کی انگلیاں ہیں جو اپنے ہاتھوں کے حالت میں چھوڑ دینا ہے، ایسے زیادہ وہ کر کے نہیں کرنا ہے سمیٹ کے، اور نہ ہی زیادہ پھیلا کے کرنا ہے، بلکہ اپنے حالت میں چھوڑ دینا ہے، اور اسی حال میں کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا۔ سنت نمبر 3، بوقت تکبیر سر نہ جھکانا، یعنی تکبیر کے وقت بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ سر کو ایسے جھکا دیتے ہیں، تو ایسے نہیں جھکانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے جس حال میں ہے ویسے ہی رکھنا ہے۔ سنت نمبر 4، تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا، ٹھیک ہے، تکبیر سے پہلے کیا کرنا؟ ہاتھ اٹھانا۔ سنت نمبر 5، تکبیر کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لینا، یعنی جیسے تکبیر ختم ہو جائے اس کے بعد کیا ہے؟ ہاتھ باندھ لیا جائے۔ سنت نمبر 6، پہلے سبحانہ، یعنی سبحان کا معنی ثنا، پہلے ثنا پڑھنا، پھر کیا پڑھنا؟ اعوذ باللہ، یعنی پورا پڑھنا، پھر کیا پڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد کیا پڑھنا؟ ثنا پڑھنا، پھر اعوذ پڑھنا، پھر تسمیہ پڑھنا، کیا ہے؟ سنت ہے۔ سنت نمبر 7، الحمد شریف کے ختم ہونے پر کیا کہنا؟ آمین کہنا۔ الحمد شریف جب پڑھ لیا جائے تو دھیرے سے اتنی آواز میں کہا جائے کہ خود سن سکے، ٹھیک ہے، تو یہ کہنا آمین کہنا الحمد شریف پڑھنے کے بعد کیا ہے؟ سنت ہے۔ سنت نمبر 8، رکوع میں گھٹنوں پر کیا کرنا؟ ہاتھ رکھنا، رکوع میں کیا کرنا؟ گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا، اور انگلیاں نہ پھیلانا، یعنی گھٹنے پر جب رکوع میں جاتے ہیں تو گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کا رکھنے کا کیا عالم ہے کہ یہ انگلی والی انگلی اور انگوٹھے کو دونوں سائڈ سے جو کر لیں، اور یہ 3 انگلی سیدھا پیر کے طرف نیچے سائڈ ہونا چاہیے سامنے، تو اس طریقے سے کیا کرنا؟ رکوع کے حالت میں انگلیوں کو نہ پھیلانا، بلکہ جیسے رکھنے کا حکم ہے ویسے ہی رکھنا۔ سنت نمبر 9، رکوع میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا، یعنی رکوع میں جب جاؤ تو کم سے کم کتنی بار سبحان ربی العظیم؟ 3 بار پڑھنا کیا ہے؟ کم سے کم سنت ہے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی آدمی پڑھ سکے۔ سنت نمبر 10، رکوع میں جانے کے لیے
क्या है, अल्लाह अकबर कहना। यानी जब रुकू में जाते हैं तो ऐसे ही नहीं चले जाना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, अल्लाह अकबर कहते हुए जाना चाहिए, ताकि सुन्नत भी अदा हो जाए और जो हुक्म है नमाज का वो हुक्म भी पूरा हो जाए। सुन्नत नंबर 11, रुकू में सिर्फ उसी कदर झुकना कि हाथ क्या है, घुटनों तक पहुंच जाए। यानी क्या है, इस कदर झुकना कि हाथ कहाँ तक पहुंच जाए, घुटनों तक पहुंच जाए। अब ये जो है औरतों के मुतालिक से है, ये औरतों के मुतालिक से है कि इतना झुका जाए कि हाथ कहाँ, घुटनों तक पहुंच जाए। मगर मर्द हजरात को इस मसले पे, इस सुन्नत को अदा करने के लिए क्या करना है कि अच्छे तरीके से, यानी कायदे से झुक करके घुटने में हाथ रखना है और पीठ को और सर को दोनों को बराबर कर लेना है। यानी उसके ऊपर अगर कोई पटरा रख दिया जाए तो पटरा ना गिरे। ठीक है। सुन्नत नंबर 12, रुकू से उठते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना। यानी जब रुकू से उठा जाए तो क्या कहना चाहिए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना। ये क्या है, सुन्नत है। सुन्नत नंबर 13, सजदे के लिए और सजदे से उठने के लिए अल्लाह अकबर कहना। यानी जब सजदे में जाया जाए, जब भी क्या कहा जाए, अल्लाह अकबर कहते हुए जाया जाए, और जब सजदे से उठा जाए जब भी अल्लाह अकबर कह के उठा जाए। सुन्नत नंबर 14, सजदा में हाथ जमीन पर रखना। यानी जब सजदा किया जाए तो हाथ को इधर उधर ना रखें, बल्कि जो हुक्म है जितना रखना चाहिए हाथ को, उतना क्या है, हाथ को जमीन पर रखना। ये क्या है, सुन्नत है। सुन्नत नंबर 15, कम अज कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ना। यानी सजदे के हालत में कम से कम कितना, 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ना क्या है, सुन्नत है। सुन्नत नंबर 16, सजदा में जाने के लिए जमीन पर पहले दोनों घुटने एक साथ रखना। यानी जब सजदे में जाया जाए तो पहले दोनों हाथ क्या करें, घुटनों को जमीन पर रखना, फिर हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी। ठीक है। इस तरीके से सजदे में जाने के लिए ये सुन्नत तरीका है कि पहले घुटना रखा जाए, फिर हाथ रखा जाए, फिर पेशानी रखी जाए, फिर नाक। ठीक है। नाक फिर पेशानी क्या है, पहले नाक, क्योंकि पेशानी से नाक ऊंची है, तो पहले नाक फिर पेशानी जो है सजदे में। और सजदे से उठते वक्त उसके बरअक्स, यानी जब सजदे से उठेंगे तो उसके क्या है, बरअक्स, यानी उसका उल्टा। यानी जैसे गए थे कि पहले घुटना, फिर हाथ, फिर नाक, फिर सर, तो अब क्या करेंगे, पहले सर, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटना। इस तरीके से उठना, यानी उसका उल्टा करना। इस तरीके से क्या करना, उठना। ये क्या है, जाना सजदे में और उठना, दोनों क्या है, सुन्नत तरीका है। सुन्नत नंबर 17 क्या है, समेट कर सजदा करना। यानी औरतों के लिए समेट करके सजदा करना क्या है, सुन्नत तरीका है। और मर्द हजरात खुल करके सजदा करेंगे अच्छे से, बेहतरीन अंदाज में। ठीक है। तो उनको जो हुक्म है कि दोनों हाथों को रखा जाए अगल बगल कान के बगल में, और अच्छे से लंबा सजदा किया जाए ताकि पीठ जो है सीधी हो जाए। सजदे में अच्छे से सजदा करना, ये सुन्नत तरीका आदमी हजरात, मर्द हजरात के लिए है। और समेट करके सुन्नत क्या करना, सजदा करना, ये औरतों के लिए सुन्नत। सुन्नत नंबर 18, दोनों सजदों के दरमियान मिस्ल तशहुद के बैठना। यानी जैसे तशहुद में बैठते हैं वैसे ही बैठना दोनों सजदों के दरमियान। ठीक है। और सुन्नत नंबर 19, दूसरी रकात के लिए पंजों के बल घुटनों पर हाथ रखकर उठना। दूसरी रकात के लिए जब सजदा करके उठेंगे तो घुटनों के बल जब उठेंगे तो दोनों हाथों पर घुटने में हाथ रख करके उठना क्या है, ये सुन्नत तरीका है। सुन्नत नंबर 20,
दूसरी रकात के बाद सजदों से फारिग होकर दोनों पांव दाहिनी जानिब निकालकर बाएं सुरीन पर बैठना। ठीक है, यह सुन्नत तरीका है, यानी दोनों पांव को दाहिने तरफ निकालेंगे और क्या करेंगे, निकाल करके अच्छे से सुरीन के बल बैठ जाएंगे। यह औरतों के लिए हुक्म है, और मर्द हजरात के लिए हुक्म यह है कि दाहिने पैर को खड़ा कर लिया जाए। ठीक है, और दाहिने पैर को खड़ा करके बाएं पैर को बिछा करके उस पर बैठा जाए। इस तरीके से बैठना जैसे नमाज में बैठते हैं मर्द हजरात, उनके मर्द हजरात के लिए जो है दाहिना पैर खड़ा करके और बायां पैर बिछा करके बैठना सुरीन के बल, यह सुन्नत तरीका मर्द हजरात के लिए है। और सुन्नत नंबर 21, दाहिना हाथ दाहिनी रान पर रखना और बायां हाथ बाईं रान पर रखना, यह भी क्या है, सुन्नत तरीका है। सुन्नत नंबर 22, उंगलियों को अपने हाल पर छोड़ना और रान के किनारे से क्या घुटनों के पास होना, यानी घुटने के पास होना चाहिए रान के किनारे से। बाज लोग क्या करते हैं, घुटने से ऐसे, ये घुटना है तो बाज लोग ऐसे झुका देते हैं। यह हुक्म नहीं है, ये बहुत सख्त ममानियत है जो है बैठने के दरमियान, तशहुद में बैठने के दरमियान उंगलियों को ऐसे लटका करके घुटने में नहीं रखना चाहिए, बल्कि हुक्म क्या है कि इतना रखा जाए, यानी घुटने के बगल में ऐसे ऊपर, घुटने के ऊपर हो, ऐसे रखने का हुक्म है। तो ऐसे ही मर्द हजरात के लिए भी, ऐसे औरतों के लिए भी यही हुक्म है। सुन्नत नंबर 23, शहादत पर इशारा करना। शहादत यानी अत्तहियात पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद उंगली उठाते हैं ना, तो उंगली से इशारा, अशहदु पे इशारा करना, ये क्या है, सुन्नत है। सुन्नत नंबर 24, तशहुद के बाद क़ायदे आखिरा में दुरूद शरीफ पढ़ना, यानी तशहुद के बाद। ठीक है, यानी शहादत, अत्तहियात और शहादत पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना क्या है, आखिरी कायदे में, यानी वहां पढ़ने के बाद क्या है, सलाम फेरना है, तो उस सूरत में क्या है, दुरूद शरीफ पढ़ना सुन्नत है। सुन्नत नंबर 25, दुरूद शरीफ के बाद अरबी में दुआ करना। दुरूद शरीफ में क्या है, दुरूद शरीफ के बाद क्या, अरबी में दुआ करना, और बेहतर वह दुआएं हैं जो बुजुर्गों से मनकूल है, यानी जो दुआए मासूरा है। दुआए मासूरा किसी को याद नहीं है तो बाद लोग रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार पढ़ते हैं, और बाज़ और भी जो है आयतें हैं, जो अच्छी आयतें बुजुर्गों से मनकूल है, वही आयतें दुआ पढ़नी चाहिए जो दुआ हमारे बुजुर्गों से मनकूल है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दुरूद शरीफ के बाद अगर दुआए मासूरा याद नहीं है तो जो हमारे बुजुर्गान दीन से मनकूल दुआ है वही दुआ पढ़ी जाए। सुन्नत नंबर 26, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू 2 बार कहना। 2 बार कहने का मतलब कि दाहिनी तरफ फिर बाएं तरफ, यानी एक बार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी 2 बार हो गया तो 2 बार सलाम कहना क्या है, सुन्नत है। सुन्नत नंबर 27, जोहर मगरिब और ईशा के बाद मुख्तसर दुआ करके सुन्नतों के लिए खड़ा हो जाना, वरना सुन्नतों का सवाब कम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जोहर मगरिब और ईशा, ठीक है, क्योंकि जोहर से पहले भी सुन्नत है, जोहर के बाद भी सुन्नत है, और मगरिब के बाद सुन्नत और नफिल है, और ईशा के पहले भी सुन्नत है, जमात से पहले सुन्नत है, जमात के बाद भी सुन्नत वाजिब नफिल है। तो इसीलिए यहाँ हुक्म यह है कि मुख्तसर दुआ की जाए नमाज में, जमात के दरमियान, जमात के बाद मुख्तसर दुआ करें, उसके बाद खड़ा हो जाए। इसके लिए सुन्नत वगैरह के लिए जो बाकी नमाज है उसको पूरी करने के लिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि पूरा बयान हमारे देखने वालों को समझ में आएगा।
اور انشاءاللہ العزیز سمجھنے کے بعد کوئی اچھا انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کا کمنٹ بھی کرے گا۔ اور اسی لیے سبھی لوگوں سے، ہمارے دوست حضرات اور جتنے بھی ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھی ہیں، سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے ہی بہترین جو ہے اور بھی دینی بات، مسئلہ و مسائل نماز کے متعلق سے اور بھی جو بھی آپ کو پسند ہو اس متعلق بیان سننا ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ کیجئے کہ ہم کو اس مسئلے پہ سننا ہے، تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ اور جتنے لوگ جڑے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ آپ حضرات اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو دینی جانکاری اور سنتوں کا جو ہے بول بالا ہو، اور تاکہ ہم اور آپ حضور کے نقش قدم پر عمل کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی سنتوں کو اور بھی زیادہ سے زیادہ چرچا کرنی چاہیے تاکہ ہمارے حضور کی جو بھی سنتیں ہیں وہ ہم سے زیادہ ادا ہو سکے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، فقط و سلام، خدا حافظ۔